Hello, my dear students. Welcome to Talking Textbooks, Leaving No Child Behind. Today we are going to study about the solar system. Last class में हम लोगों ने बातें की थी the various types of the night sky things, right? जैसे stars. फिर हम लोगों ने थोड़ी बहुत बातें की थी कॉन्सलेशंस की, राइट? तो ये जो हमने नाइट स्काई और यूनिवर्स के बारे में लेक्चर 1 में सीखा था, अब उसी का सेकेंड पार्ट हम लोग देख रहे हैं, दैट इज द सोलर सिस्टम इन विच वी लिव, राइट? So basically we are talking about the solar system today and the components which make it the solar system. Alright, so we are going to study that today also. So let's get started. You all know that we do prepare for the school examination as well as the Olympiad. So if you are watching these video lectures to clear your school examination or the Olympiads, then you are so much good to go. You should watch these video lectures till the end and you should share these video lectures to everyone. Alright. If you want DPP and study material, you can access them through our Telegram channel. You need to write this code TTB06 in the search box of the Telegram app, and in the drop down list, our channel for classics will appear. You can join that channel and access all the DPPs and study material along with the notifications of the video classes you are going to get. Alright, now see, this is the team which is putting so much effort for you all, and we are doing so much hard work for you all so that we can provide you the quality education you deserve, and that is what we are standing up for, right? And हम लोगों ने जो भी कुछ आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया है वो सभी आपके लिए बहुत हेल्पफुल है. क्यों? क्योंकि हम लोगों ने स्कूल और ओलंपियाड्स दोनों के लिए ही आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया है कंटेंट, एंड वी आर प्रोवाइडिंग दोज लेक्चर्स टू यू. So if you are the one who is watching it for the first time, then you can definitely join all the things, right? आपको Telegram channel join करना चाहिए. You can watch out all the video lectures out there which are free for everyone, right? So you can watch all the things and you can definitely going to clear your examination if you do study with, you can say, so much determination, right? And the most important thing is these video lectures are free for everybody. So make sure that you share these video lectures to everybody so that जो भी बच्चे जो डिजर्व नहीं कर पाते हैं, जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं क्वालिटी एजुकेशन को, उनको वो यहाँ तक ये जो वीडियो लेक्चर्स है वो मिल जाए ताकि वो स्टडी करें और अपनी एग्जामिनेशंस को क्लियर करें, राइट? दैट मीन्स यू नीड टू डू व्हाट? यू नीड टू शेयर दीज वीडियो लेक्चर्स टू एवरीबडी, राइट? नाउ सी, in accordance to that, we have also prepared some packages for you all. So if you are interested in the year-long studies, or if you are interested in the step-by-step throughout the year, toward a particular consistency, then you can join the packages provided to you. To access those packages, you need to go on the website www.talkingtextbooks.in. So if you go on our website, that you are going to get two type of packages. Number one is the full package. Second one is the test series. So देखिए, full package के अंदर you are going to get all the necessary things you need to crack any examination. So number one is the study material. Second one, the live classes or the recorded ones. Third, homework submission. You need to do the homework, and that is a crucial part, right? Homework is the crucial part if you want to prepare or if you want to clear with good marks, right? So that's why homework submission feature is there. And then the bi-weekly quizzes, you are going to attempt twice, you can say twice a week, right? You are going to say कि भाई आपको 2 बार वीकली क्विज अटेम्प्ट करना होगा in a week, right? And then you can see the periodic test paper. So these 5 things are definitely going to help you in your year-long journey, and you can definitely going to crack all the examination you wanna aim for, right? That is the most important thing. If you only want only the testing part, then you can join the test series. What you will be getting is the periodic test papers, recorded and live classes, bi-weekly quizzes. Alright. So you are going to get these much of, you can say, things in the test series. So if you want to buy them, if you want to join them, then you can write my code CYLIVE to get a 30% discount. And if you want to know more about these video lectures or these packages, you can definitely call us on the number 919549041111. So make sure that you call us so that all your queries getting resolved. Alright. Now let's get started. Promise yourself that you will be watching the whole lecture, you will be making proper notes, and you will be revising on a daily basis. It is important, right? ये हमारा last lecture है, and then we will be doing the revision and then questions. ठीक है? तो हमारे studying करने का तो ये last lecture है.
ठीक है, उसके बाद हमारा चैप्टर भी फिनिश हो गया है, राइट। सो यू नीड टू डू व्हाट, रिवीजन। अब आपके पास किसका टाइम बचता है, रिवीजन का टाइम बचता है। तो मेक श्योर दैट यू रिवाइज ऑल द नेसेसरी थिंग्स, ठीक है, जितना भी अब तक हम लोगों ने स्टडी किया उन सभी को अच्छे से रिवाइज करो अगेन एंड अगेन। Only then that thing will stick to your mind forever, right? So you need to make sure that you are going to revise it very, very, very frequently. All right, let's get started. The solar system we are going to study today. All right, now see, the main thing we are going to study today, the solar system, sun, planets. All right, so with this, these are the things we are going to study today itself. So let's get started. Solar system से बात करते हैं. So देखिए, solar system actually क्या है? sun और भी बहुत सारी चीजें जो एक यू कैन से एक ग्रुप में अगर हम बोले, कलेक्शन ऑफ द सन, द प्लैनेट्स, द एस्ट्रॉइड, मीटियोर्स, राइट, एंड ऑल द थिंग जो भी हैं, वो सभी के सभी जब हम एक सिस्टम की बात करते हैं, सो दैट सिस्टम कैन बी टेकन एज द सोलर सिस्टम. तो सी, द सन एंड ऑल बॉडीज इन ऑर्बिट अराउंड इट मेक अप द सोलर सिस्टम. ठीक है, सन और सन के चारों तरफ जो भी यू कैन से बॉडीज रिवॉल्व कर रही हैं, वो सभी की सभी बॉडी क्या बनाती हैं, सोलर सिस्टम बनाती हैं, राइट. दे कलेक्टिवली नोन एज द सोलर सिस्टम. फिर देखिए, द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम इज द सन. आपको पता है पहले के ज़माने में जब ये नहीं पता था, जब लोगों को ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल और यू कैन से साइंस की नॉलेज नहीं थी, तो सब लोगों को लगता था कि अर्थ सेंटर में है और सन चारों तरफ चक्कर लगाता है, लिटरली. एंड देन जब डिस्कवरीज हुई, इन्वेंशंस हुए, रियलिटी पता चली, तब सब लोगों ने माना दैट सन इज एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम. एंड अभी भी ये ट्रू बात है, बिल्कुल राइट. दैट इज द थिंग कि भाई ऐसे हम लोग एडवांसमेंट करते रहते हैं एंड वी लर्न न्यू थिंग्स एंड वी रियलिटी में अगर हम लोग देखें तो हम अपने डिस्कवरीज और इन्वेंशन के बेसिस पे ये क्लियर आउट करते हैं कि हमने जो सोचा था वो सही है या नहीं, राइट. दिस इज द थिंग दैट वी डू इन साइंस, मेनली इन फिजिक्स. ठीक है, द अदर मेंबर्स ऑफ द सोलर सिस्टम इंक्लूड द 8 planets, their moons or satellites, large number of asteroids, thousands of comets and innumerable meteors. So basically जो कुछ भी हमारे यू कैन से सोलर सिस्टम में है वो क्या क्या है. सबसे पहला सन जो कि बिल्कुल सेंटर में है, देन 8 planets जो कि काफ़ी बड़ी बॉडीज हैं, ठीक है, और वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है, ठीक है. फिर आते हैं कौन, उन प्लैनेट्स के अपने अपने सैटेलाइट्स, ठीक है. दे कैन बी नेचुरल, दे कैन बी आर्टिफिशियल, बिकॉज हमारे अर्थ के पास तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी है, राइट. सो दे द मून्स और द सैटेलाइट्स, ठीक है. एंड देन वेरी मच यू कैन से एस्ट्रॉइड, जो कि एस्ट्रॉइड बेल्ट भी है हमारे यहाँ पे, हमारे सोलर सिस्टम में, राइट. एंड देन कॉमेट्स, मीटियोर्स, इन सभी को मिलाकर हम लोगों ने क्या बोला है, दैट दे मेक अप द सोलर सिस्टम, राइट. सोलर सिस्टम में मेनली इतनी सारी चीजें होती हैं जिन्हें हमें जानना जरूरी होता है, राइट. नेक्स्ट देखिए, दीज अदर मेंबर्स ऑफ द सोलर सिस्टम ऑल्सो रिवॉल्व अराउंड द सन एंड आर बाउंड टू इट बाय स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्सेस. जितनी भी चीजें हैं जो सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है, ठीक है, वो सब की सब क्यों कर पा रही है सन के चारों तरफ रिवॉल्व, वो इसलिए बिकॉज सन ने क्या किया हुआ है, उन्हें होल्ड अप किया हुआ है. किससे, ग्रेविटेशनल फोर्सेस से. सन के पास, बिकॉज ऑफ इट्स मास, सन के पास बहुत 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 ज्यादा मास होता है एंड दैट इज वाई वो क्या करता है, दूसरे प्लैनेट्स, दूसरी बॉडीज पे क्या करता है, फोर्स लगाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है. एंड बिकॉज ऑफ दैट ग्रेविटेशनल फोर्स जितने भी प्लैनेट्स हैं वो क्या करते हैं, सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, ठीक है. सो कोई भी बॉडी अगर सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है, वो क्यों कर पा रही है, बिकॉज ऑफ यू कैन से दी ग्रेविटेशनल फोर्सेस, ठीक है. तो जितना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होगा उतना ही वो क्या कर पाएंगे, सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर पाएंगे. इसी तरीके से अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कौन करता है, मून, राइट. तो मून जो है वो अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व किस लिए कर पाता है, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्सेस जो कि अर्थ लगाती है मून पे, राइट. सो वी कैन से दैट कि यहाँ पर एक बॉडी से यू कैन से एक बॉडी के चारों तरफ अगर कोई दूसरी बॉडी रिवॉल्व कर रही है, तब हम लोग बोल सकते हैं दैट वो किसकी वजह से रिवॉल्व कर रही है, ग्रेविटेशनल फोर्सेस की वजह से. अब आप देखिए, अर्थ का जो मास है वो मून के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है, ठीक है. इसी वजह से अर्थ
का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इनफ स्ट्रॉन्ग है कि वो मून को अपने चारों तरफ रिवॉल्व करवा सके। इसी तरीके से सन का जो मास है वो अर्थ के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है, एंड दैट इज वाई सन ने क्या किया हुआ है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया हुआ है, इनफ ग्रेविटेशनल फोर्स कि अर्थ को वो अपने चारों तरफ रिवॉल्व करवा सके। एंड नॉट ओनली अर्थ, all the 8 planets revolve around sun. So basically sun के gravitational force की वजह से मरकरी, वीनस, मार्स, अर्थ, जुपिटर, सैटर्न, ये सभी के सभी प्लैनेट्स जो जितने भी हैं उन सभी के सभी अर्थ जो है सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्सेस। एंड हर एक अपने प्लैनेट के कुछ यू कैन से कुछ प्लैनेट्स के, ठीक है, बहुत सारे मून्स होते हैं, तो वो मून उस प्लैनेट के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ दैट प्लैनेट, राइट। सो बेसिकली ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करवा सकता है, एक बॉडी को दूसरे बॉडी के चारों तरफ रिवॉल्व करवा सकता है, ठीक है। एंड दैट इज वाई, दैट इज द रीजन दैट ऑल द प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन एंड नॉट इवन द प्लैनेट्स। एस्ट्रॉइड बेल्ट भी तो है, तो एस्ट्रॉइड्स भी क्या करते हैं, सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट। So let's get started and let's see about sun. तो देखो sun जो है वो बिल्कुल सेंटर पे है and it you can say it is the you can say बहुत ही अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है, क्योंकि जितनी भी एनर्जी सन को यू कैन से अर्थ को मिल रही है, जितनी भी एनर्जी अर्थ को मिल रही है वो सन से मिल रही है। मोस्ट ऑफ द एनर्जीज आर गेटिंग बाय सन ओनली, राइट। सो सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, ऑलराइट, इट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अस एंड दैट इज वाई अभी इतने सारे इन्वेंशन चल रहे हैं कि सन से जो एनर्जी आ रही है उसे हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे आपने सोलर प्लेट्स का नाम सुना होगा, राइट। तो सोलर प्लेट क्या करती हैं, सन की एनर्जी को यूज करती हैं और उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देती हैं। ऐसे ही बहुत सारे इन्वेंशंस आर गोइंग ऑन सो दैट वी कैन एक्सट्रैक्ट ऑल द एनर्जी नीड्स और यू कैन से वी कैन कंप्लीट ऑल आवर एनर्जी नीड्स बिकॉज ऑफ द सन एनर्जी ओनली, राइट। सो दैट इज द मेन थिंग, क्योंकि देखिए सन की जो एनर्जी है दैट इज यू कैन से हमको हमेशा मिलती रहेगी, राइट, काफी टाइम तक, और दैट विल बी द मिलियन ऑफ ईयर्स, राइट। तो जब इतनी एनर्जी हमें मिलती है रेगुलरली, सो दिस इज इनएग्जॉस्टेबल, ये खत्म नहीं होगी, तो दैट कैन बी टेकन एज द इनएग्जॉस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी, राइट। एंड दैट इज द मेन थिंग कि हम इस एनर्जी को जो है यूज करने की कोशिश कर रहे हैं एंड दैट इज द मेन थिंग अबाउट द सन। See, the sun is the star closest to the earth at a distance of 150 million kilometer from the earth. This is the sun, ठीक है, इस तरीके का वो दिखाई देता है, you can say the ball of fire, ठीक है, you can say, क्योंकि इसमें पूरी तरफ से it is like a sphere, ये sphere है and इसमें आप बोल सकते हो कि टोटल इसमें सिर्फ हीट अप ही होते रहता है। बहुत सारे ऐसे इसके ऊपर रिएक्शन चलते हैं, न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन रिएक्शन चलते हैं, बिकॉज ऑफ दैट लॉट ऑफ एनर्जी गॉट एमिटेड, ठीक है। ये जो सन है दैट इज द स्टार विच इज क्लोजेस्ट टू आवर अर्थ, ठीक है। तो हमारी अर्थ से सबसे पास पहला स्टार कौन है, सन है, और वो भी कितने दूर है, द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड द अर्थ इज 150 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ, ठीक है। तो इट इज 150 किलोमीटर, 150 मिलियन किलोमीटर, ठीक है, ये काफी ज्यादा डिस्टेंस है एंड यू ऑल नो दैट कि दिस मच ऑफ डिस्टेंस इज कवर्ड बाय सनलाइट इन जस्ट 8.5 मिनट्स, राइट। तो कितनी जल्दी यू कैन से कि कितनी जल्दी सनलाइट जो है हमारे तक पहुंच जाती है, राइट। एंड डू यू नो द स्पीड ऑफ द सनलाइट, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ऑलराइट। अब देखिए, लाइट फ्रॉम द सन टेक्स 8 1/4 मिनट्स टू रीच द अर्थ। 8 1/4 मिनट्स में जो सनलाइट है फ्रॉम द सन अर्थ तक वो पहुंच जाती है, राइट। इट इज अ येलो स्टार बेस्ड ऑन द कलर, उसके टेम्परेचर पे बेस्ड जो यू कैन से जो कलर है वो हमारे सन का येलो है, और इट इज ऑलमोस्ट लाइक 1500 डिग्री सेल्सियस से बहुत 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 ज्यादा इसका टेम्परेचर है, ठीक है, एंड दैट इज व्हाई इट इज येलो स्टार। इट इज अ वेरी हॉट बॉल ऑफ ग्लोइंग गैसेज, इसमें सिर्फ गैसेज ही हैं और वो बहुत सारी हाई टेम्परेचर की गैसेज हैं, ठीक है। सो यू कैन से दैट इट इज अ वेरी हॉट बॉल ऑफ ग्लोइंग गैसेज। तो है तो ये एक तरीके से एक स्फीयर, अ बॉल, राइट,
but it is made up of gases and those gases are totally have a very high temperature, they glows out. ठीक है, तो आपको हमेशा क्या मिलेगा, लाइट मिलेगी, राइट? So that is the main thing about the sun. It holds all the planets surrounded by gravitational forces. ये सन अपने चारों तरफ जितने भी प्लैनेट्स हैं उन सभी को रिवॉल्व करवाता है बाय द हेल्प ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस. एंड दैट ग्रेविटेशनल फोर्स सन के पास कैसे आया? बिकॉज ऑफ इट्स मास. और इसके पास बहुत ज्यादा मास है. दैट इज द रीजन दैट इट कैन होल्ड अप टू द ऑल द प्लैनेट्स एंड मेक देम रिवॉल्व अराउंड इट. ऑलराइट, सो दैट इज द ऑल द नेसेसरी थिंग्स अबाउट द सन. आप इन सभी को नोट कर लो फटाफट से. ऑलराइट, अब हम आगे चलते हैं एंड लेट्स सी कि जो 8 प्लैनेट्स सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं वो कौन कौन से हैं. नाउ सी, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून. ये जो ऑर्डर है आपको इसी ऑर्डर में इसे रिमेंबर करना है. व्हाई सो? बिकॉज ये ऑर्डर सन के डिस्टेंस पे बेस्ड है. ठीक है, जैसे मरकरी सबसे क्लोजेस्ट है सन के, एंड देन वीनस, देन अर्थ एंड देन मार्स. तो इनका जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सन उसके बेसिस पे हमने इसे अरेंज किया है. ठीक है, एंड यू कैन रिमेंबर इट बाय यूजिंग अ ट्रिक. हो सकता है कई बच्चे इसे रिमेंबर नहीं कर पाए, सो आई एम टेलिंग यू द ट्रिक बाय विच यू कैन डेफिनेटली रिमेंबर इट फॉर द वेरी लॉन्ग टाइम. ठीक है, so the trick to remember is how you can do it. You can remember a sentence. My very efficient mother just served us नूडल्स. ऑलराइट, तो देखिए माई, यू हैव टू रिमेंबर द फर्स्ट लेटर. ठीक है, आपको इस सेंटेंस से सभी के फर्स्ट लेटर समझ में आ जाएंगे. सो देखिए यहां पर है माई, माई का मरकरी. ठीक है, एम मतलब माई फॉर यू कैन टेक दैट एज मरकरी. ठीक है, फिर देखिए वेरी, वेरी इज फॉर वीनस. ठीक है, फिर देखिए एफिशिएंट, एफिशिएंट इज फॉर अर्थ. Mother, mother is for Mars. Just, just is for Jupiter. Served, S is for Saturn. Us, us is for Uranus. Noodles, N is for Neptune. So if you are able to remember this sentence, ठीक है, then you can remember the order, the correct order from the sun ऑफ द प्लैनेट्स. ठीक है, तो अगर आपको ये सेंटेंस रिमेंबर हो जाता है तो आप सारे के सारे प्लैनेट्स का जो ऑर्डर है फ्रॉम द सन डिस्टेंस के बेसिस पे उसे आप बहुत अच्छे से रिमेंबर कर पाएंगे और कभी नहीं भूलेंगे. सो यू नीड टू रिमेंबर एवरी सिंगल वर्ड ऑफ दिस सेंटेंस. ऑलराइट, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स. ऑलराइट, एंड इसको सोच के ऐसा मत है ना कि भाई नूडल्स की याद आ गई अब तुम्हें नूडल्स खाने हैं. अभी नहीं, अभी हमें सारे प्लैनेट्स पढ़ने हैं. ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट मरकरी. ठीक है, मरकरी की बात करते हैं. सो देखो मरकरी कितना ब्यूटीफुल दिखता है, राइट? इट इज क्लोजेस्ट टू द सन. सन के बाद जो पहला प्लैनेट जो सन के पास है दैट इज मरकरी. मरकरी को हिंदी में क्या कहते हैं? बुध. ठीक है, तो मरकरी को हम हिंदी में बुध कहते हैं. एंड लेट्स टॉक अबाउट इट मोर. So Mercury lies closer to the sun than any other planet. This is the first planet after sun. ठीक है, तो sun के चारों तरफ sun के बाद पहला planet है Mercury. ठीक है, now it is a dry, hot and virtually airless planet. बहुत ज़्यादा dry है. ठीक है, क्योंकि no moisture, sun इतना close है तो definite सी बात है moisture वहाँ हो ही नहीं सकता. So it is totally you can say dry, hot, बहुत ज़्यादा गर्म क्योंकि sun के बहुत close है.
एंड वर्चुअली एयरलेस प्लैनेट, मतलब इसके ऊपर जो एयर है वो न के बराबर है, ठीक है। ऐसा नहीं है टोटली नहीं है, ऐसा नहीं है कि वहां वैक्यूम है, बट इट इज लाइक वेरी 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 लेस एयर इट हैज, ठीक है। सो इट इज हॉट, इट इज ड्राई एंड वर्चुअली एयरलेस प्लैनेट, ठीक है। इट हैज क्रेटर्स लाइक द मून बट इट्स इंटीरियर इज सिमिलर टू दैट ऑफ द अर्थ। रिमेंबर, इसके मून नहीं है, इसके मून के जैसे क्रेटर्स हैं, ठीक है। तो इट हैज क्रेटर्स बट इट डज नॉट हैव एनी मून, रिमेंबर इट। और आपको पता है ये थोड़ा बहुत जो है अर्थ से सिमिलरिटी रखता है। कैसे रखता है, लेट्स सी। लाइक द अर्थ इट्स इंटीरियर कंटेन्स आयरन एंड अदर हैवी एलिमेंट्स। जैसे हमारे जो प्लैनेट है वहां पर जैसे आयरन है, बिकॉज वी नो दैट कि सेंटर ऑफ द अर्थ पे लावा है, हॉट लावा विच इज रोटेटिंग, ठीक है। तो इसी तरीके से मरकरी में भी क्या है, आयरन, अदर हैवी एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो इट इज लिटिल बिट सिमिलर टू द अर्थ, राइट, अबाउट दिस। मरकरी इज मच स्मॉलर इन साइज देन द अर्थ। अर्थ से ये काफी छोटा है, ठीक है, काफी छोटा है, वी कैन से दैट। Mercury is less common planet that appears in the east before sunrise, so it is also sometimes called morning star. आप इसे देखिए, less common planet, इसका मतलब आपको हमेशा नहीं दिखाई देगा, बहुत मुश्किल से कभी कभार दिख जाता है, और कभी कभार आपको मॉर्निंग में दिख जाता है, राइट, बिफोर सनराइज। सो इसी वजह से, क्योंकि ये मॉर्निंग में दिखता है, इसी वजह से इसे कभी कभी मॉर्निंग स्टार से भी जाना जाता है, ठीक है। सो दिस इज द मरकरी। नाउ इसके सारे पॉइंट्स आप इसको जो है नोट कर लीजिए। ऑल राइट, लेट्स गेट अहेड, ठीक है। अब देखिए, बीइंग क्लोज टू द सन इट टेक्स ओनली 88 अर्थ डेज टू गो वंस अराउंड द सन। तो मतलब इसका ईयर जो है वो 88 डेज में ही फिनिश हो जाता है। एंड तो फिर कितना अच्छा होगा, जो भी इसके ऊपर मरकरी के ऊपर रहेगा उसका बर्थडे हर 88 डेज में आ जाएगा, राइट। सो यू नीड टू सेलिब्रेट योर बर्थडे एवरी 88 डेज, दैट वुड बी सो कूल। नाउ सी सेकेंड प्लैनेट, दैट इज वीनस। वीनस कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है। वीनस सेकेंड प्लैनेट है एंड वीनस इज द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन आवर स्काई आफ्टर द सन एंड द मून। सन जो कि सबसे ब्राइटेस्ट है, एंड देन द मून, ठीक है, एंड देन कम्स द वीनस। सो वीनस इज द थर्ड, यू कैन से द ब्राइटेस्ट थिंग एक्सेप्ट द सन एंड द मून, राइट, यू कैन से। अब देखिए, इट्स ब्राइट अपीयरेंस इज ड्यू टू इट्स क्लाउडी एटमोस्फेयर विच रिफ्लेक्ट्स ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द सनलाइट फॉलिंग ऑन इट। तो यहाँ पे मरकरी में क्या होता है, इसका बहुत ही ज्यादा क्लाउडी एटमोस्फेयर होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जितनी भी सनलाइट इसके ऊपर फॉल करती है उसमें से ज्यादातर 3/4 तो वो रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है। एंड दैट इज वाई, बिकॉज ये रिफ्लेक्शन करता है, सो दैट वी टेक दैट इट इज अ ब्राइट थिंग, ठीक है। तो दैट इज द मेन रीजन दैट इट इज टोटली ब्राइट, और आपको ये जनरली दिखाई भी देगा। देखिए, वीनस इज ऑलमोस्ट ऑफ द सेम साइज एज द अर्थ बट रोटेट्स रिलेटिवली स्लोली अराउंड इट्स एक्सिस। सेम साइज का होता है अर्थ से, लेकिन अर्थ से धीरे धीरे रोटेट करता है, दैट मीन्स मच स्लोवर। तो इसका मतलब जैसे हमारे अर्थ, अगर यू कैन से 24 आवर्स है हमारा डे, तो इसका जो डे होगा वो काफ़ी यू कैन से बड़ा होगा, 24 की जगह उसमें ज़्यादा नंबर ऑफ आवर्स होंगे, ठीक है, बिकॉज ये रिलेटिवली स्लो रोटेट करता है। इट हैज़ नो मून और सैटेलाइट ऑफ इट्स ओन। खुद की इसकी कोई मून नहीं होता, कोई सैटेलाइट नहीं होती, ठीक है। Venus is even hotter than Mercury, though it is relatively farther away from the sun. This is because of the high percentage of carbon dioxide in its atmosphere. आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड क्या काम करती है? कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, सन की जितना भी रेज आती हैं, ठीक है, जितना भी उस पर फॉल होता है उसको वो ट्रैप कर लेती है, बाहर नहीं जाने देती, ठीक है। एंड दैट इज द रीजन कि ये जो वीनस है, हालांकि ये मरकरी के बाद आता है, फिर भी ये मरकरी से ज्यादा गर्म होता है। क्यों? बिकॉज इसके पास क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और मरकरी के पास तो कोई एयर ही नहीं है,
राइट? सो यू कैन से कि यहाँ पर वीनस का जो हॉटनेस है, वीनस का जो टेम्परेचर है वो ज्यादा किस वजह से है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, ठीक है। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो क्या करती है? ट्रैप कर लेती है सन की हीट को, जितनी भी सन की हीट प्लैनेट पे गिरती है उसको ट्रैप कर लेती है, उसको बाहर ही नहीं जाने देती, राइट? तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। सो आप फटाफट से वीनस के लिए भी फटाफट से उसके पॉइंट्स नोट कर लीजिए। All right, now let's talk about Earth. ठीक है, अर्थ के बारे में बात करते हैं। तो नाउ वी ऑल नो दैट अर्थ इज द प्लैनेट ऑन विच वी लिव, राइट? द अर्थ इज अ वेरी यूनिक एंड स्पेशल प्लैनेट ऑफ आवर सिस्टम बिकॉज वी लव ऑन इट, राइट? इसीलिए तो वो इतना स्पेशल है। एंड इसका पता है स्पेशलिटी वो भी है कि यहाँ पर लाइफ है, और स्पेशल ये इसलिए भी है बिकॉज इट हैज वाटर इन द लिक्विड फॉर्म, राइट? एंड यहाँ पे बहुत सारी अमेजिंग चीजें भी मिलती हैं। नाइट सी, like the other planets, the earth not only revolves around the sun but also rotates about an imaginary axis of its own. ठीक है, खुद की एक्सिस भी होती है जिसके अबाउट ये रोटेट करता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट रोटेशन आपको डे एंड नाइट जो है अर्थ पे फॉर्म होता है, ठीक है। अब वो खुद अपनी एक्सिस पे भी रोटेट करता है, दैट एक्सिस इज इमेजिनरी, ऑलराइट? वी डोंट नो वेयर इट इज बट वी डू नो दैट वेयर इट इज, ठीक है। ये किस एक्सिस पे रोटेट करता है ये हमें अब पता चल गया है, बट इट इज इमेजिनरी, ठीक है। ये कोई लाइन नहीं है जो आपको लिटरली विजिबल होगी, ऑलराइट? यहाँ पर ये खुद रोटेट कर रहा है, अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, दैट मीन्स डे एंड नाइट फॉर्म कर रहा है। एंड ये सन के चारों तरफ भी रिवॉल्व कर रहा है, दैट मीन्स ये ईयर जो है उसको फॉर्म कर रहा है, राइट? अब आप देखते हैं नेक्स्ट, द पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन एट एनी टाइम हैज डे एंड द पोर्शन फेसिंग अवे हैज द नाइट, ठीक है। तो लेट्स सी कि इस फेस पर सनलाइट आ रही है तो इस फेस पर तो डे होगा, और इसके ठीक पीछे वाले फेस पे क्या होगा? नाइट होगा, ठीक है। तो जो फेस सन, मतलब यू कैन से अर्थ का जो फेस सन को पॉइंट आउट करता है या सन की तरफ होता है वहां पर तो डे होता है, और जो फेस अपोजिट होता है वहां पर हो जाती है रात। एंड यू कैन से दैट इज हाउ इट फॉर्म्स डे एंड नाइट, राइट? अब देखिए, एज द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस डे एंड नाइट फॉलो वन आफ्टर द अदर, एक के बाद डे एंड नाइट तो फॉर्म होते रहते हैं, राइट? इसी की वजह से, बिकॉज इट इज कंटिन्यूसली रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस। अब देखिए, द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ इज नोन टू बी टिल्टेड विद रिस्पेक्ट टू इट्स ऑर्बिट। वो जिस ऑर्बिट पे मूव करती है, सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है, उस ऑर्बिट के रेस्पेक्ट में दैट एक्सिस इज टिल्टेड, ठीक है। तो मतलब जो एक्सिस है वो कैसी है? टिल्टेड है, नॉट वर्टिकल, इट इज टिल्टेड टू सम एंगल, राइट? नाउ सी, इट कंप्लीट्स वन रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इन नियरली 365 and 1/4 days. So basically 365 and 1/4 days is going to give you how much? A year, ठीक है। इतने डेज को काउंट अप हम लोग क्या मानते हैं? ईयर मानते हैं, एंड इतने दिन में हमारा बर्थडे आ जाता है, राइट? Now see, when the northern hemisphere is tilted towards the sun, it's summer there. At that time, it is winter in the southern hemisphere. Now see, जो भी इसका पार्ट है जो सन की तरफ टिल्टेड रहता है, ठीक है। लेट्स से इफ द एक्सिस इज राइट हियर, इस तरीके से अगर इसकी एक्सिस होगी, सो ये किस तरफ के ऊपर से? नॉर्दर्न की तरफ ये सन को टिल्टेड कर रहा है, राइट? तो जिस तरफ जो भी इसका जो हेमिस्फीयर है जो कि सन की तरफ टिल्टेड होता है वहां पर समर होता है, एंड अपोजिट वाले हेमिस्फीयर में क्या होता है? विंटर होता है, ठीक है। इसी तरीके से जब ये रोटेशन करता है, सो दिस विंटर एंड समर कंटिन्यूसली ऑल्टरनेटिवली जो है आते रहते हैं। फिर देखिए, द रिवर्स हैपेंस व्हेन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड अवे फ्रॉम द सन, और जो भी फेज अवे फ्रॉम द सन होगा, जो भी हेमिस्फीयर अवे फ्रॉम द सन होगा वहां पर विंटर होगा, ठीक है। फिर देखिए, ऑटम एंड स्प्रिंग अकर व्हेन द अर्थ इज बिटवीन दीज टू एक्सट्रीम पोजीशन इन इट्स ऑर्बिट। सो बेसिकली जब कभी भी समर और विंटर के बीच में से हम लोग ट्रैवल करते हैं, दैट मीन्स समर जब जा ही रहा होता है एंड विंटर आ ही रहा होता है, एट दैट मोमेंट और टू एक्सट्रीम पोजीशंस के बीच का जो भी जो है यू कैन से लेंथ है, वी कॉल दैट विद द
अदर यू कैन से सीजन्स एंड ऑटम और स्प्रिंग उनमें से एक है, राइट. सो यू आर गोइंग टू गेट सो मच अमेजिंग seasons and all on this earth, and that is why it is special and one of its own, right. इसके भी points note कर लो. चलिए अब हम नेक्स्ट प्लैनेट की बात करते हैं, दैट इज व्हाट, मार्स. ठीक है, तो अब हम देखते हैं मार्स के बारे में. देखो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा रेड होता है. ठीक है, एज यू कैन सी फ्रॉम दिस पिक्चर. सो इसी वजह से इसको हम रेड प्लैनेट भी बोलते हैं. ठीक है, मार्स यूजुअली अपीयर्स रेडिश इन कलर, हेंस इट इज ऑल्सो ऑफन नोन एज द रेड प्लैनेट, क्योंकि हमको रेडिश अपीयरेंस देता है, जैसे हमारी अर्थ ब्लूइश अपीयरेंस देती है, राइट. बिल्कुल वैसे ही. Its surface resembles a cold high altitude desert. इसकी जो सरफेस है वो बहुत ज़्यादा ऊंचा हाई एल्टीट्यूड यू कैन से एंड वेरी कोल्ड डेजर्ट टाइप की होती है. ठीक है, इट्स एटमोसफेयर कंसिस्ट प्राइमरीली ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अलॉन्ग विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर वेपर एंड अदर गैसेस. वहाँ पर भी काफ़ी सारी गैसेस होती हैं, बट कार्बन डाइऑक्साइड काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है वहाँ पे. ठीक है, मतलब इतना भी ज्यादा नहीं होता, बट येस इट इज देयर. ठीक है, उसके अलावा यू कैन गेट स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर वेपर और अदर गैसेस जो हमारे एटमॉस्फेयर में भी हैं, वो वहां पर भी हैं, बट इन द स्मॉल अमाउंट. नेक्स्ट देखिए, इट्स सरफेस टेम्परेचर एंड सरफेस प्रेशर आर बोथ वेरी लो. These conditions make it unlikely for water to exist in a liquid state on this planet. Because of this, you can say pressure and the temperature, जो इसका surface temperature और pressure है वो बहुत low रहता है, and that is the reason कि यहाँ पे जो water है वो liquid की form में exist नहीं करता. ठीक है, the diameter of Mars is only a little more than half of that of the Earth. तो हमारी Earth का जो diameter है उसका हाफ, उससे थोड़ा सा ज्यादा जो है इसका मार्स का डायमीटर है. ठीक है, इट्स मास इज हाउएवर ओनली 1/10 ऑफ दैट ऑफ द अर्थ, देयरफॉर हैज अ लो एवरेज डेंसिटी एज कंपेयर टू द अर्थ. अब इसका मास जो है वो सिर्फ 1/10 है. लेट अस से कितना छोटा है ये इन कंपैरिजन टू अर्थ, राइट. तो इट इज 1/10 ऑफ द अर्थ यू कैन से इन द मास. और डायमीटर में कितना ज्यादा है, अर्थ का डायमीटर का हाफ, तो उससे थोड़ा सा ज्यादा, राइट. सो यू कैन से दैट इसी वजह से, क्योंकि इसका जो डेंसिटी है वो भी कम है, इसका मास जो है वो बहुत ज्यादा कम है. सो यू कैन से दैट कि भाई इसी वजह से इसके पास जो डेंसिटी है दैट इज वेरी लो. ठीक है, नेक्स्ट देखो, मार्स हैज 2 नेचुरल सैटेलाइट्स और मून्स नेम्ड फोबोस एंड डीमोस. ठीक है, जैसे हमारे अर्थ का जो यू कैन से मून है वो है उसका प्लैनेट, सॉरी नेचुरल सैटेलाइट, राइट. सो अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट इज मून. इसी तरीके से मार्स के भी 2 नेचुरल सैटेलाइट हैं जिनका नाम क्या है, फोबोस एंड डीमोस. ठीक है, फोबोस एंड डीमोस आर द नेम ऑफ द 2 सैटेलाइट ऑफ द मार्स. ऑलराइट, इसको फटाफट से नोट कर लीजिए. चलिए अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, दैट इज जुपिटर. जुपिटर बहुत बड़ा प्लैनेट होता है. ठीक है, यू कैन से इट इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द प्लैनेट्स. तो मतलब सभी 8 प्लैनेट्स में से जुपिटर इज द लार्जेस्ट वन. इसके अंदर बहुत सारी अर्थ आ सकती हैं. दिस इज वेरी लार्ज.
According to NASA, Jupiter has 53 confirmed moons and 26 unconfirmed moons. They are confirmed because we are waiting to get more information about them. So see, जुपिटर के पास जैसे मून के पास यू कैन से मार्स के पास 2 मून है, अर्थ के पास 1 मून है, उसी तरीके से जुपिटर के पास कितने मून्स हैं? 53 कंफर्म्ड मून्स है, मतलब 53 मून्स का तो नामकरण हो चुका है, ठीक है, एंड 26 अनकंफर्म्ड मून्स हैं। इसका मतलब उनके बारे में अभी और इंफॉर्मेशन जाननी है, जो कि रिसर्च चल रही है, ऑल्सो उनका अभी नामकरण नहीं हुआ है, ठीक है, तो उनको क्या बोला गया है? अनकंफर्म मून्स। इसी तरीके से इट हैज 26 अनकंफर्म मून्स एंड 53 कंफर्म मून्स। सोचो इतना ज्यादा बड़ा है कि इसके पास इतने सारे मून्स हैं, राइट? इफ द मून्स गेट कंफर्म, जुपिटर विल हैव 79 मून्स और सैटेलाइट। अगर ये कंफर्म्ड हो जाते हैं, इनका नामकरण बढ़िया से हो जाता है, सो देन इट विल बी हैविंग 79 मून्स ऑफ इट्स ओन। This planet has the largest number of moons amongst all the planets basically, ठीक है। और आपको पता है ये जो रेड डॉट आप देख रहे हैं ना, ठीक है, ये जो रेड डॉट आप देख रहे हैं, डू यू नो व्हाट इट इज? दैट इज अ स्टॉर्म, दैट इज अ थंडर स्टॉर्म ऑन द जुपिटर, ठीक है। इसके ऊपर बहुत सारे यू कैन से बहुत सारे स्टॉर्म्स आते हैं एंड ये स्टॉर्म्स आपको पता है 200 ईयर्स से आ ही रहा है। सोचो कितना बड़ा है ये प्लैनेट, राइट? आप इसे फटाफट से नोट कर लें। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, राइट? और ये जो जुपिटर का सबसे बड़ी वाली जो सैटेलाइट है, मतलब जुपिटर की भी बहुत सारी सैटेलाइट्स है, 79 मून्स, राइट? सो सबसे बड़ा जो इसमें सैटेलाइट है उसका नाम क्या है? उसका नाम है गैनेमीड, ठीक है। सो गैनेमीड इज द बिगेस्ट सैटेलाइट ऑफ जुपिटर, ऑलराइट। अब हम पढ़ते हैं किसके बारे में? सैटर्न के बारे में। सैटर्न, यू कैन से सैटर्न को सब लोग मोस्ट ब्यूटीफुल प्लैनेट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट हैज रिंग्स, और ये जो रिंग्स होती है ये बहुत ब्यूटीफुल होती है। दीज रिंग्स आर टोटली मेड अप ऑफ डस्ट एंड ऑल, ठीक है, थोड़ा बहुत मटीरियल्स, टुकड़े, स्टोन्स, एस्ट्रॉइड्स, लिटिल बिट ऑफ, लेकिन ये जो यू कैन से चारों तरफ रिंग्स बन रही है, मोस्ट ऑफ दिस इज डस्ट, ठीक है, एंड दीज रिंग्स आर एक्चुअली वेरी ब्यूटीफुल। देखिए सैटर्न इज क्वाइट सिमिलर टू जुपिटर इन साइज, मास एंड कॉम्पोजिशन। सो साइज, मास, कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन मतलब किस चीज का बना हुआ है, ठीक है, ये सब इज टोटली सिमिलर टू द जुपिटर, ठीक है। सैटर्न और जुपिटर यू कैन से दोनों सेम टू सेम है, ज्यादातर तो नहीं। इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर फैमिली। सो जो कि जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है, उसके बाद ये सैटर्न आता है, ठीक है। It is distinguished by its very unique and special system of rings. These rings give it a beautiful appearance. Definite सी बात है, इकलौता planet ऐसा है जिसकी पास इतनी beautiful rings हैं, इसी वजह से ये सबसे unique है, ठीक है। There are 3 distinct rings surrounding this planet. These rings can be seen clearly only with the help of a telescope. So if you have telescope or if you have that much of if you have that much of things, तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि ये जो रिंग्स हैं वो आपको नॉर्मली नहीं दिखाई देती हैं, ठीक है, लेकिन इफ यू वॉच इट फ्रॉम द टेलीस्कोप देन यू आर एबल टू सी दीज रिंग्स ऑल्सो, ठीक है। 3 अलग रिंग्स आपको दिखाई देंगी, 3 डिस्टिंक्ट रिंग्स हियर, ऑलराइट। गैलीलियो वाज द फर्स्ट टू ऑब्जर्व दीज रिंग्स विद द टेलीस्कोप। गैलीलियो जो थे वो पहले ऐसे आदमी थे जिन्होंने टेलीस्कोप से सैटर्न की रिंग्स को देखा था, राइट। अकॉर्डिंग टू नासा, सैटर्न हैज 53 कंफर्म मून्स एंड 29 अनकंफर्म मून्स। तो अगर ऐसा होता है, ये जो अनकंफर्म मून्स हैं अगर वो कंफर्म्ड हो जाते हैं, तो उसके बाद टोटल कितने हो जाएंगे? 82 मून्स हो जाएंगे। मतलब सैटर्न के पास जो मून्स होंगे वो किससे ज्यादा हो जाएंगे? जुपिटर से भी ज्यादा हो जाएंगे, राइट। चलिए अभी सैटर्न के बाद हम नेक्स्ट प्लैनेट देखते हैं, लेकिन अब फटाफट से इसे नोट कर लीजिए। चलिए अभी हम नेक्स्ट प्लैनेट देखते हैं,
ओ, सैटर्न की सबसे बड़ी सैटेलाइट तो रह गई। सैटर्न की सबसे बड़ी सैटेलाइट है टाइटन, ठीक है, उसका नाम क्या है, टाइटन, सबसे बड़ी सैटेलाइट है, मतलब आउट ऑफ दोज कंफर्म्ड एंड अनकंफर्म्ड मून्स। ठीक है, अब हम यूरेनस की बात करते हैं। देखिए, इट इज द थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, ठीक है, ये थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेट है। इसके बाद, इसका मतलब जुपिटर के बाद सैटर्न, सैटर्न के बाद फिर हमारा यूरेनस, ठीक है। अब देखिए, साइज के मुकाबले की बात हो रही है यहाँ पे। इट्स डायमीटर इज ऑलमोस्ट 4 टाइम्स देन दैट ऑफ द अर्थ। अर्थ का जितना डायमीटर है उसका 4 टाइम्स इज द डायमीटर ऑफ यूरेनस। इतना ज्यादा बड़ा होता है। इट कैन कंटेन एज मैनी एज नियरली 64 अर्थ्स इन इट। 64 अर्थ इसके अंदर जो है समा सकती हैं। यू कैन सी दैट कितना बड़ा है ये इसके मुकाबले, राइट। हाइड्रोजन एंड मीथेन हैव बीन डिटेक्टेड इन द एटमॉस्फेयर ऑफ दिस प्लैनेट। तो इसके प्लैनेट का जो एटमॉस्फेयर है उसमें हाइड्रोजन और मीथेन गैस को यहाँ पे ऑब्जर्व किया है कि भाई इसके एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन एंड मीथेन मेजर कंपोनेंट्स हैं। This planet is observed to have a blue-green colors. This is believed to be because of the presence of methane gas in its cold, clear atmosphere. Because of the presence of methane gas, it has that blue-green appearance. ठीक है, ऐसा माना जाता है। अभी तक ये पूरी तरीके से कंफर्म नहीं है। Its northern hemisphere remains in a 4-decade long period of darkness because of the way the planet rotates. अब जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ पे मतलब हमारी अर्थ जब रोटेट करती है तो इतना ज्यादा लॉन्ग पीरियड नहीं रहता है, ठीक है। लेकिन यूरेनस के लिए आप देखिए 4 डिकेड लॉन्ग पीरियड ऑफ डार्कनेस, दैट मीन्स 40 इयर्स। 40 इयर्स तक आपको डार्कनेस मिलेगी इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, इस तरीके से। और ये रीजन क्या है इसका, कि ये रोटेट ही ऐसे करता है कि इसमें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 4 डिकेड्स जितना जो है डार्कनेस रहता है, इतना बड़ा पीरियड है। सो फार 27 सैटेलाइट्स ऑफ मून्स ऑफ यूरेनस हैव बीन डिस्कवर्ड। तो यूरेनस के पास 27 मून्स हैं, राइट। फटाफट से नोट कर लीजिए इसके बारे में। Alright, now let's move up to the 8th one. Now see, यूरेनस की बिगेस्ट मून, इसका नाम क्या है, टाइटेनिया, ठीक है। सो यूरेनस का बिगेस्ट मून इज टाइटेनिया। नाउ लेट्स मूव अप टू द लास्ट प्लैनेट, दैट इज द नेपच्यून। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, वरुण। क्या बोलते हैं इसे, वरुण बोलते हैं। सो इट इज वेरी फार अवे फ्रॉम द सन एंड विजिबल ओनली थ्रू अ टेलीस्कोप। सबसे ज्यादा दूर है, लास्ट में आता है बिल्कुल, ठीक है। इट हैज बीन नेम्ड आफ्टर द रोमन सी गॉड नेपच्यून, ठीक है। तो रोमन में सी, समुद्र के देवता को नेपच्यून बोला जाता है, दैट इज व्हाई इट इज नेम्ड एज द नेपच्यून, ठीक है। अकॉर्डिंग टू नासा, नेपच्यून हैज 14 कंफर्म्ड मून्स, ठीक है, इसके पास 14 कंफर्म्ड मून्स होते हैं अकॉर्डिंग टू नासा। एंड ट्रिटॉन इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ नेपच्यून। इसके पास ऑलरेडी 14 है ना, 14, उसमें सबसे बड़ी कौन है, ट्राइटन, ठीक है। सो यू कैन से दैट कि अब हमारे जो 8 प्लैनेट्स हैं हम उनको स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। इसको भी नोट कर लीजिए एंड देन वी विल बी टॉकिंग सम अदर थिंग्स। All right, now let's move up to the very beautiful information that is for your knowledge only, ठीक है। सो यहाँ देखिए, जितने भी प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम के उनको हमने कुछ नाम दिए हैं, ठीक है। सी, all the planets of the solar system were believed to be gods and goddesses in ancient Greek, Roman and Indian mythologies and under। देखो, जितने भी प्लैनेट्स हैं उन सबको, चूंकि ये प्लैनेट्स हैं, बहुत बड़ी चीज हैं, राइट, क्योंकि जिनके ऊपर लाइफ एग्जिस्ट करती है, तो इनको किसके नाम पे रखा, इनको माना जाता था दैट ये देवी देवता है, ठीक है, ऐसा माना जाता है। दूसरे यू कैन से कल्चर में भी और इंडियन कल्चर में भी माना जाता है, राइट। सो लेट्स सी उनके डिफरेंट डिफरेंट नेम्स एंड व्हाट दे वर टोल्ड इन, ठीक है। सो मरकरी जो प्लैनेट है, हिंदी में उसे बोलते हैं बुध, ठीक है, और ग्रीक रोमन में उन्हें माना जाता है मैसेंजर ऑफ गॉड्स, ठीक है। इसी तरीके से वीनस, हिंदी का नाम है शुक्र
और रोमन में इसे बोला जाता है गॉडेस ऑफ ब्यूटी एंड लव, उसको बोला जाता है वीनस को, राइट। फिर आप देखिए अर्थ, अर्थ को हिंदी में बोलते हैं पृथ्वी और इसे माना जाता है गॉडेस गिया, ऑलराइट। फिर देखिए मार्स, मार्स को इंडियन नेम यानी कि हिंदी में बोला जाता है मंगल और उसे रोमन और ग्रीक कल्चर में बोला जाता है गॉड ऑफ वॉर एंड कन्फ्लिक्ट, ठीक है। फिर देखिए जुपिटर, जुपिटर को हिंदी में बोलते हैं बृहस्पति एंड इसको ग्रीक रोमन में बोला जाता है किंग ऑफ गॉड्स। फिर देखिए सैटर्न, सैटर्न को हिंदी में बोलते हैं शनि एंड उसको गॉड गॉडेस जो कि ग्रीक में होता है उसे बोलते हैं गॉड ऑफ फर्टिलिटी। नाउ सी यूरेनस, यूरेनस को हिंदी में बोलते हैं अरुण और उसको ग्रीक रोमन कल्चर में बोलते हैं हस्बैंड ऑफ गॉडेस गिया। एंड देन लास्ट नेपच्यून, नेपच्यून को हिंदी में बोलते हैं वरुण एंड उसको गॉड ऑफ सी स्टॉर्म्स बोला जाता है ग्रीक एंड रोमन कल्चर में। सो ऑल द प्लैनेट्स वर बिलीव टू बी गॉड और गॉडेसेस, हर एक वी कैन से रोमन ग्रीक कल्चर में एंड इंडियन कल्चर में भी, राइट। एंड दैट इज द मोस्ट यू कैन से गुड थिंग, ऑलराइट। अब मैं आपको एक और बात बताती हूँ एंड दैट इज द लूनर इक्लिप्स, ठीक है। लूनर एंड सोलर दो तरीके के इक्लिप्स होते हैं, ठीक है। जो लूनर इक्लिप्स होता है उसे हम बोलते हैं इसमें हम लोग बोल सकते हैं चंद्र ग्रहण, हिंदी में बोलते हैं। व्हाट हैपन्स व्हाइल सच टाइप ऑफ फिनोमेना, तो देखो सन और अर्थ जो है वो दोनों आमने सामने होते हैं, मून कहाँ चला जाता है, अर्थ के पीछे चला जाता है। तो क्या होता है, सन से आती हुई जितनी भी लाइट रेज हैं वो पृथ्वी पर तो गिरती है, दैट मीन्स अर्थ तक तो पहुंचती हैं, बट मून क्योंकि पीछे चला जाता है तो सन पे सन की जो लाइट रेज हैं जो कि मून पे होनी चाहिए थी वो वहां तक नहीं पहुंच पाती है, ठीक है। तो इट इज लाइक लूनर एक्लिप्स तब होता है जब सन और मून के बीच में कौन आ जाए, अर्थ आ जाए, देन ओनली लूनर एक्लिप्स हैपन, जिसे हम चंद्र ग्रहण कहते हैं, ठीक है। मतलब अर्थ केम इन बिटवीन द सन एंड द मून, ठीक है। इसी तरीके से सोलर एक्लिप्स जिसे हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। सो व्हाट हैपेंस व्हाइल दिस, क्या होता है, अर्थ और सन के बीच में कौन आ जाता है, मून आ जाता है, ठीक है। सो मून के ऊपर जो लाइट फॉल होती है और अर्थ से वही लाइट ब्लॉक हो जाती है क्योंकि वो तो मून पे फॉल हो जाती है, राइट। सो एट दैट टाइम यहाँ पर हमें कैसे दिखाई देता है, बिल्कुल यू कैन से चंद्रमा आ जाता है तो मून तो है वो वाली साइड जो हमें फेस करी वो ब्लैकिश है। देखो यहाँ पर मून की तरफ जो लाइट आ रही है तो वो उधर का साइड ब्राइट है, बट इधर का साइड क्योंकि यहाँ पे लाइट नहीं पहुँच रही है मून के तो वो ब्लैकिश नजर आता है, ठीक है। और जब वो ब्लैकिश सन के सामने आ जाता है तो सन रेज ब्लॉक हो जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सोलर इक्लिप्स बोलते हैं। मतलब सन से आने वाली रोशनी जब मून ब्लॉक कर देता है तो हम क्या बोलते हैं, दैट इज सोलर इक्लिप्स, ठीक है। सो ये दो ऐसे फिनोमेना हैं जो होते रहते हैं, ठीक है। बहुत सारे सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स हो चुके हैं और होते भी रहते हैं, बेसिकली वी कैन सी दैट, ठीक है। आप इसको नोट कर सकते हैं चाहे तो। Alright, so this was it in this lecture. तो हम लोगों ने हमारा लेक्चर कंप्लीट कर लिया है. नेक्स्ट लेक्चर would be the revision. So get ready for that. Alright, I'm ending the lecture here. Thank you so much for watching the video. Please like it, share it, subscribe it, and do not forget to click on the bell icon so that you will remain notified for the upcoming video. Thank you so much.